Assalamu alaikum everyone. I'm Adil. I'm one of the co-founders at Aware. दूसरे co-founder को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं, वो रज़ा है. और I think in the entire course आप लोगों ने AI पे काफ़ी ज़्यादा you've studied AI, you've interacted with AI most probably. So I think I'm gonna give it a very different take on what AI is, and especially about how are you building SaaS. So obviously अगर इसकी थोड़ा background आपको रज़ा भाई ने दे ही दिया होगा कि पहले इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद क्लाउड एप्लीकेशंस आई, फिर SaaS का एक धूम मची, and how SaaS has transformed major enterprises, major softwares. So can you tell me कि आप daily basis पे कोई software application use करते हैं? कोई भी हो सकती है वो. QuickBooks exactly is a Excel is not a cloud application. जी? That's a cloud application. जी? Notion is a brilliant, it's a very good cloud application, and Notion ने AI की integration बहुत अच्छे तरीके से भी की है. So, but Notion was initially a SaaS. So Notion is more than 10 years old. It started off as a writing tool, categorizing tool. But now, since AI came in, they had to obviously use AI in their product. And before it was just SaaS, now it's a proper AI tool that people are using. But the functionality of Notion is the same. It's an enterprise tool that helps companies to combine or gather information like a user manual, information like it can be a product document. But AI is accelerating the process by writing those documents, by creating that structure, जैसे आप chat GPT use करते हैं. But enterprises keep all of their confidential information, whether it's an infrastructure document or anything on Notion. But it's a SaaS first, and then AI came into it. So similar, हमारा भी Aware Technologies की भी journey exactly इस तरीके से थी कि we started off as operators first. I'm not sure if Raza has told you, we started off with providing physical warehousing services to enterprises across Pakistan. Then obviously हमने जब देखा कि कितना manual काम हो रहा है, we went towards building a software. तो वो जर्नी हमारी किस तरह गुजरी, and then obviously now it's the age of AI, so we have to use AI in our application. So it's still a SaaS, but AI has become a very crucial part of it in the entire journey for the clients, for us, and for my team as well, who are building this product or running this product. So थोड़ा सा हम इस चीज़ को डिस्कवर करेंगे. इसमें मैंने आपको एक, if you have any questions, so there is a QR code over here, you can scan it and you can just, अगर आपको कोई question है आप उस पर टाइप कर दें, वो question खुद ही आ जाएगा, and after the end of this we can take questions. Otherwise अगर आपको बीच में भी मुझे रोकना है, मुझे कोई मसला नहीं है. This is just some fancy tool I use दिखाने के लिए कि मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है, बट इससे ज़्यादा नहीं है. So I think I'll start from my journey first. Working, not working. खुद ही कर लेता हूँ. अगर आप लोग को आवाज़ हो रही है तो मैं माइक आ रही है आवाज़? रिकॉर्डिंग? अच्छा चलें ठीक है, मुझसे कर. ठीक है, चलें जी. So we started this journey around 2021. It was उस टाइम पे रज़ा भाई and I, we were doing our own jobs. We had this idea where we should start with warehousing infrastructure. उसकी क्यों ज़रूरत थी? हम दोनों के past experiences इस तरह के थे. I'm not sure if Raza has told you his story, but मेरी side की story ये थी कि I was building a company called Novo, which is a lighting company. तो उसकी पूरी supply chain जो थी वो China से linked थी. I was manufacturing here in Pakistan and then distributing across Pakistan. And उससे पहले मेरा experience जो था वो I started my journey from Careem. So I worked at Careem from 2016 till 2018. तो Careem उस वक्त, if you know, I'm sure if you've used Careem at that point in time, so Careem was in a very growth trajectory, काफी grow कर रहा था, everyone was using it, and then eventually it got acquired by Uber as well. So I was part of that journey, got to see first hand कि एक बड़ी tech company किस तरह grow करती है, how does it scale up,
how does tech help in reshaping enterprises or just people's lives generally in an emerging market. तो हम obviously जब we go to USA, we go to the Western world, वहाँ पे तो एक developed infrastructure है, but एक tech company एक emerging market में जहाँ पे infrastructure बहुत weak है, how does it reshape that market, right? So I had that opportunity to witness that firsthand कि किस तरीके से how to shape things. उसके बाद I joined Daraz, which was a e-commerce marketplace. सबको काफी criticism होगा Daraz पे कि order नहीं पहुंचता. But I think उस time पे when I was at Daraz, I saw कि global उस वक्त Alibaba was taking over Daraz. So again, I saw in real time कि यार एक बड़ी enterprise, standardized data sets, imported technology, foreign technology, पाकिस्तान में हम किस तरह use कर सकते हैं. And then eventually, coming back to my point, I came to Novo. So I was building manufacturing in Pakistan, entire supply chain routing from China. So this was my background. And इस पूरे background से आप मुझे जो एक key insight नजर आई वो ये थी कि हमारी markets में कोई standardized operational data layer नहीं है. What do you mean by data layer? तो जैसे राजा ने बताया कि AWS को हम as a database use करते हैं on the cloud, right? इसी तरीके से WhatsApp एक डेटा लेयर यूज करता है. बट अगर हम वैसे लिंक करना जाएं, अगर जैसे आपने क्विकबुक्स की बात की, तो क्विकबुक्स मेक्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड. उसकी आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करके यू कैन मेक इनसाइट्स इनटू इट. बट अगर आप एक जनरल जो किसी पुरानी कंपनी में चले जाओ जिसमें पेपर रजिस्टर पे लेजर्स मेंटेन हो रहे हैं, वहां पे हाउ वुड यू मेक दैट एनालिसिस, राइट? तो द फर्स्ट थिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशनल डेटा लेयर. ठीक है, आप किसी कंपनी में मैं चला जाऊं, मैं बोलूं यार आप एआई यूज कर लो. आपकी एक परचून की दुकान है, सॉरी आपका नाम मैं नहीं ले रहा, बट इमेजिन आपकी एक परचून की दुकान है एंड यू से कि यार मुझे एआई यूज करनी है क्योंकि हर कोई एआई यूज करना है. हाउ वुड यू शिफ्ट टू एआई? कुछ आइडिया है आपको किस तरीके से आप, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? क्या लेट्स से आपको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, हाउ वुड यू गो अबाउट स्विचिंग टू एआई? आप अपने अपने ऑपरेशंस एआई पे शिफ्ट करना चाहते हो सारे. I would first take the data to AI and told him that build me a database or make a platform like LLM something type. आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल. तो इजी खाता इज अ क्लाउड एप्लीकेशन जो एक परचून की दुकान के डेटा को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि आप उसको कर सको. एग्जैक्टली माय पॉइंट. सो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली जंप टू एआई कि यार मुझे एआई लगानी है. मैं एग्जांपल देता हूँ. हमारा एक कस्टमर था, द फर्स्ट टाइम वी वेंट टू हिम, उसने मुझे उसका वेयरहाउस हमने देखा, उसने कहा मुझे रोबोट्स चाहिए. यार रोबोट्स में कहाँ से लेके आऊँगा? उसके पास जब हमने देखा उसको, तो उसके पास ना WMS था ना उसका डेटा. वो अभी भी पेंसिल पे गेट पासेस बनाता था, वो एक्सेल पे मैनेज करता था इन्वेंट्री. सो इट वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एट ऑल. सो हाउ मैं किसी तरीके से भी उसको ऑटोमेट नहीं कर पाऊंगा अनलेस वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म पे लेके आए. सो अगेन द क्रक्स ऑफ ऑल माय जर्नी, मैंने जो अभी आपके साथ शेयर किया है इसके, we saw this problem in major enterprises, billion-dollar enterprises in Pakistan, all over the world, who are working with a lot of tools, but unka data, operational data is not standardized. And they're big names, अगर मैं आपको बताऊं इसमें. So this was the problem that we foresaw कि मैंने और रज़ा ने देखा. रज़ा coming from his background at enterprises like Maersk, Hutchison, I'm coming from a startup environment, so कि यार ये opportunity बहुत बड़ी है. Why was the opportunity big? Because आप देखें जितने भी startups होते हैं अगर emerging markets में, उनका core purpose is to digitize एक कोई manual workflow को. अगर आपने रिटेलो, बाजार, दराज का नाम सुना हो, तो ये क्या करते थे, ये वो एक सेल्स प्रोसेस जो कंप्लीटली मैनुअल था उसको डिजिटाइज करते थे. बिकॉज सेल्स तो पहले भी हो रही थी बट उसमें विजिबिलिटी या कोई प्रोसेस नहीं था. सो द एंटायर क्रक्स ऑफ क्लाउड एप्लीकेशंस और any application for any specific purpose is to digitize that workflow. And इसके बगैर AI cannot do anything because AI can only read contextual data. जो चैट जीपीटी हम यूज करते हैं, दैट्स अ वन विंडो टाइम फ्रेम जिसकी एक मेमोरी लिमिट है, राइट? सो प्रोबेबली चैट जीपीटी वुड नो एवरीथिंग अबाउट यू, but it would not know about what your company does wherever you're working. So let's say if you're working in HR and you have a pool of 1000 employees, आप पर्सनली तो चैट जीपीटी को यूज करते हो, एक्सेल ड्रॉप करके हो, ये मुझे गिव मी दिस एनालिसिस, वो कर देगा. But it will not know the policies of your HR.
it will not know many things about your company's processes. For example, कि भाई travel allowance इतने $100 तक है. But if it was an HR tool powered by AI, और आपकी कंपनी ने वो HR tool use किया हुआ था, तो that would have been the case कि आप उस HR tool में जाके prompt करते कि यार मुझे इस बंदे का travel allowance बताओ, तो बता देता. See the difference between ChatGPT and a cloud application. So HR tool is a vertically integrated tool that's using AI. So सबसे पहला हमने context ये बनाना है कि SaaS और AI, what's the difference? So SaaS has to be relevant for a certain domain. कोई आपको ऐसा idea है कि any आप कोई कंपनी में काम करते हो, what is the most inefficient tool that you use? आपकी कंपनी ने आपको दिया हुआ है. अच्छा, पार्क व्हील्स में काम करते हैं आप. टारगेट होता है कि वेंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करा, तो उस वक्त में एक ही लिस्टिंग कर सकता, बल्क लिस्टिंग नहीं कर सकता. बल्क नहीं कर सकता. बिल्कुल ठीक है. That's a good problem to have. उसका तो सिंपल फीचर है बल्क अपलोड. बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है. मे बी देयर आर सर्टेन वैलिडेशंस दैट एक लिस्टिंग में जब आप करते हो तो वो वैलिडेशंस अप्लाई होती होंगे कि उसका नाम सही हो, उसकी गाड़ी की डिटेल्स ठीक हो, पिक्चर्स एक्यूरेट हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं हो, और वो वैलिडेशन एक सर्वर में चलती है, जो सर्वर एक कंप्यूटिंग पावर लेता है, जिसकी वजह से पार्क व्हील्स कहता है आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. सो मे बी द बेस्ट डिसीजन इज कि एक बंदे को एक वक्त में एक चीज़ कराने दो. आई एम जस्ट, ये मैं सिर्फ आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, राइट. बट आई एम जस्ट, कोई और आपका इंटरनल टूल जो आप अपने इंटरनल, जैसे कोई HR एप्लीकेशन हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है इस तरह की, आप इंटरनल कंपनी ने आपको प्रोवाइड की हुई है, कि कोई और भी एग्जांपल दे सकता है इसकी. एक्सलेंट एग्जाम्पल. तो अब अगर आप यूज़ करें कि काफ़ी एप्लीकेशन सिर्फ प्रोक्योरमेंट में AI की आ गई हैं, वो आपको पहले तो ऑब्वियसली फॉर्म मेक श्योर करेंगे कि सही भरा हो, वो तो है ही है, बट वो ये भी करेंगी कि वो रैंक कर देंगे आपके सप्लायर्स को. दे विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी कि हु इज द बेस्ट सप्लायर फॉर दिस, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन probably thousands of POs in the past जो आपने जनरेट किए होंगे और उस AI को दिए होंगे. बट अगर आप आज फ्रेश AI लगा दें और उसके पास वो thousands of records नहीं होंगे, तो it cannot do anything about it. वो आपको अनशन जवाब देगा. It probably will not be accurate. So again, जो मैं आपको लेके आना चाह रहा था वो इस चीज़ पे था कि SaaS is an application that you use for a relevant domain, and AI right now is just accelerating that process. So these are two different components in the process. So अब मैं आप O360 पे आ जाता हूँ, जिस चीज़ को हम बताने आए. So what is O360? हमने किस तरीके से स्टार्ट किया? जिस तरह मैंने आपको एक जर्नी बताई कि it was all manual. पूरी सप्लाई चेन में हमने देखा, अगर कोई मुझसे रिलेट कर सकता है इन योर कंपनीज कि आपकी वेयर हाउसिंग किस तरह रन हो रही है, आपके गेट पासेस किस तरह बन रहे हैं, तो मोस्टली वी सी कि ठीक है एक ERP में एंड में डेटा एंट्री हो जाती है, बट मोस्टली गेट पासेस, हर एक्सेल सप्लाई चेन मैनेजर के पास एक एक्सेल शीट होगी. व्हेनेवर यू हैव अ बोर्ड मीटिंग और अ वीकली मीटिंग, वो एक्सेल शीट्स में रात के 8-10 बजे तक लोग बैठ के डेटा सही कर रहे होंगे और फिर बोर्ड को या अपने मैनेजर्स को प्रेजेंट कर रहे होंगे. दिस इज द केस ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट हाउ कि हमारा ये थॉट प्रोसेस था कि व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस, वी कैन जस्ट मेक इट इंस्टेंट, राइट. अगर रियल टाइम पे जो वेयरहाउस सुपरवाइजर है या जो वेयरहाउस में फ्लोर ऑपरेटर है वो सिर्फ स्कैन कर ले, वो डेटा मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वहाँ उस प्लेटफॉर्म से मैंने एक रिपोर्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, सो आई कैन सी माई सप्लाई चेन इन रियल टाइम. और दैट्स ऑपरेशनल स्टफ, नॉट जस्ट कि मेरी बैलेंस शीट पे क्या है, इन्वेंट्री लेजर्स में क्या है, आज के दिन में मेरे कितने ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं जो मैंने करने हैं. फॉर एग्जांपल कितने एक्टिव ऑर्डर्स हैं सेल्स के, परचेज के, ट्रांसफर्स के, सेल्स रिटर्न्स के, कितनी मेरी टास्क हैं कि मैंने कितना SKUs पिक करने अपने वेयरहाउस से. तो दिस अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट्स जो कि एक सप्लाई चेन में आते हैं, विच नॉर्मली एक ERP में नहीं होते. ERP में क्या होगा, GRN पोस्ट करना है, अच्छा ठीक है मेरे पास GRN की एंट्री आ गई, बट वुड इट टेल यू उस यूजर ने कितने टाइम पे टाइम किया, कितना सेकंड उसको लगा एक ऑपरेशनल टास्क कंप्लीट करने में. these are all operational steps that we talk about. So we start with O360, which is a cloud supply chain software,
It's completely modular, it's flexible, and again, it's scalable as well. So how it works is that we go to a company, we tell them that you keep your ERP, आप जो भी ERP use करें आप करें, you use O360 as an augmentation layer on top, and we will train your supervisors, your warehouse managers, your logistics executives to use our platform. जो सारा operational knowledge वो अपनी Excel sheet पे रखते हैं, वो सब हमारे platform में standardize हो जाएगा, and we will link our platform with your ERP, whether that's SAP, Oracle, anything. अब उससे क्या होता है, उनको real time instant visibility मिल जाती है into their supply chain, and they can actually take the shots कि यार मेरे पास मसला किस SKU में आ रहा है, किस warehouse के अंदर आ रहा है, मेरी कौन सा ट्रक जो है वो ज़्यादा लेट होता है, उस ट्रक का कैरियर कौन है, so I can even go deep down and see कि उस कैरियर कौन सा है जो मेरा ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता. So all of that is possible when that data is standardized. अगर data, for example, सबसे common mistake जो हमें नजर आती है organizations में कि एक SKU 3 दफा, एक ही SKU 3 दफा उसका आइटम नेम लिखा हुआ है, कभी कैपिटल से लिखा हुआ है, कभी वो स्मॉल से लिखा हुआ है, कभी exactly. कोई भी टीम होगी वो सबसे पहले उसको SKU नहीं मिल रहेगा, वो उसी SKU का नया SKU खोल देगी. I think सब रिलेट कर सकते होंगे इससे. उससे क्या होता है, दिस इज अ वेरी रीसेंट एग्जांपल एट अ वेरी बिग कंपनी इन पाकिस्तान. उनके पास 5000 SKUs थी. मेरे पास, मैं गया, मैंने कहा 5000 SKUs एक कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती. डू यू थिंक 5000 SKUs कोई कंपनी, मतलब सब ई कॉमर्स कंपनी होती ठीक है, बट एक कंपनी 5000 SKUs मैन्युफैक्चर कर रही है, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? उसमें प्रोबेबली 3000 डुप्लीकेशंस थी, बिकॉज वो हर वक्त नया SKU खोल देते थे, और वो 5 साल से एक्सरसाइज चली आ रही थी. सो अगेन एग्जैक्टली, तो जैसे आपने पीओ अपनी प्रोक्योरमेंट वाली प्रॉब्लम बताई, एग्जैक्टली इस केस में SKU पे अगर वैलिडेशन लग जाए, यू कैन नॉट ओपन अप अ न्यू SKU. ये SKU एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी. सी, सो दिस सॉल्व्स अ मेजर पॉइंट व्हिच कैन ऑब्वियसली ट्रांसलेट टू, जैसे उन्होंने कहा कि कैश फ्लो में मसला आ जाता है, मिलियंस ऑफ रुपीज और डॉलर्स फॉर सम कंपनीज. So again, that's where we started, and we started capturing events in supply chain. कौन सा इवेंट है, एक वेयरहाउस के अंदर कितने इवेंट्स हो सकते हैं? देयर प्रोबेबली मिलियंस ऑफ इवेंट्स जो एक वेयरहाउस के अंदर होते हैं. वी हैवंट गॉन अप टू मिलियन, बट द एस्पिरेशन इज कि वी कैप्चर ईच एंड एवरी डिटेल दैट कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शनेबल डेटा. इवेंट्स के बाद जब डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग इनसाइट्स इनटू इट. लाइक आई सेड, अगर SKU वो स्टैंडर्डाइज और वो रिपोर्ट पुल करना चाहें तो उनको एक SKU की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड आफ्टर दैट कम्स इंटेलिजेंस. सो ये जो 3 चीजें ये आपको AI को बतानी है, बिकॉज दिस ब्रिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, आप AI को आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, आप उसको दे देंगे, लेकिन आपको मॉडल बनाना पड़ेगा पहले, राइट? एंड इंडिविजुअली यू कैन नॉट डू दैट. फॉर अ कंपनी, फॉर एग्जांपल, अगर PSO ने एक मॉडल बनाना है, उसको पहले मॉडल बनाने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए, राइट? अगर वो एक ERP या ऐसा टूल यूज कर ले जिससे उसको वैसी स्टैंडर्डाइज डेटा मिल जाता है, वो वहीं से AI को कनेक्ट कर सकता है. इट्स वेरी सिंपल नाउ डेज, राइट? So these 3 things are very important, and this is what SaaS does. SaaS किसी इवेंट को कैप्चर करता है, and it can not just be supply chain, HR हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, किसी और को कोई और इंडस्ट्री में कोई एग्जांपल नजर आती है. Parkwheels is a good example. Parkwheels का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा हुआ है. पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां क्लासिफाइड हैं होंडा की, कितनी सीसी में, सो इट्स ऑल स्ट्रक्चर्ड डेटा. अगर कोई कार कंपनी जो गाड़ी बेचना चाहती है, वो पार्कव्हील्स के पास आए और बोले यार मुझे सिर्फ ये डेटा बता दो कि 1800 सीसी कैटेगरी में कौन सा ब्रांड ज़्यादा चलता है, उसके क्या फीचर लिस्ट होती है, राइट? सो दैट्स वैल्यूएबल डेटा. और आप AI के थ्रू आप सिर्फ प्रॉम्प्ट करके बोल सकते हो कि यार मुझे बताओ कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा रनिंग है, यू नो. सो दैट ब्रिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. बट विदाउट पार्कव्हील्स, इफ यू जस्ट गो ऑन ChatGPT राइट नाउ, वो नहीं कर पाएगा. एंड आई हैव ट्राइड दिस. मैं गाड़ी ले रहा था अभी, मैंने उसको बोला मुझे बताओ कौन सी गाड़ी लेनी है, उसके पास डेटा ही नहीं था. क्योंकि उसका नंबर 1 रीज़न है कि वी लिव इन एन इमर्जिंग मार्केट. इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी हर चीज़ डिजिटाइज्ड ही नहीं है. प्रॉब्ली अगर मैं वेस्ट चला जाता तो वेस्ट में देयर आर प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे अडॉप्शन ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की. तो मैं लिखता था, शायद मुझे वो 50-60% एक्यूरेसी दे देता. पाकिस्तान में मसला है कि हर पार्कव्हील्स की इंडेक्सिंग भी ठीक नहीं होगी तो मुझे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा. That's like a very tricky thing that I said कि मुझे पता है इंडेक्सिंग ही ठीक नहीं होगी तो मुझे नहीं. So you see, you have to have a middle platform in between, a cloud application that runs all of this to generate that insight. अच्छा, अब मैं आ जाता कि SaaS पहले किस तरह हम बेचते थे. हम बोलते थे यार
let's say कोई CPG product यहाँ बनाता है, any company that sells consumer products. अगर कोई यहाँ representative है National Foods का या कुछ, you're from National Foods, okay, perfect. So I would come to you, I would say कि यार आपके features मैं बताता कि यार मेरा बहुत अच्छा application है, it's on cloud, it runs very fast, we have so many features, we have warehousing, we have transportation, we have manufacturing, we have a control tower, and then we have a collaboration module, and then we have AI, right? This doesn't make sense. मैं एक features list down कर रहा हूँ आपके सामने कि यार मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, because it's very generic, it will not relate with you. तो ये पहले मैं इस तरह I used to sell my products कि यार look I have such a portfolio of apps, मैं आपकी warehousing में आपकी efficiency बढ़ा दूंगा, transportation में I'll give you visibility over your shipments, manufacturing में I'll start giving you complete production visibility and all of that. But honestly मैंने भी बहुत सीखा कि it doesn't work, right? Why? Because अब की दुनिया wants data, they don't want features. They don't want कि अच्छा मेरा कैनवा के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, मेरे आईफोन में 48 मेगापिक्सल कैमरा भी है और 60 भी है. 5 years ago this was the thing. People used to say यार मेरा कैमरा अच्छा होना चाहिए, right? मेरा कैमरा की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए. अब एप्पल भी नहीं बोलता ये. एप्पल सिर्फ ये बोलता है कि इस पिक्चर की क्वालिटी आप देखो. पहले वो बोलता था द बिगेस्ट कैमरा, द हर स्मार्टफोन कंपनी, बिकॉज पहले इट वाज ऑल अबाउट फीचर्स. तो आप अपनी मार्केटिंग करते थे बिकॉज नाउ आपकी इट्स द एज ऑफ, या मैंने आपको कहीं देखा पहले आपको जी IBM, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको IBM में देखा है जी. आप बोल रहे थे एब्सोल्युटली बिल्कुल. यू मतलब कौन कौन इस चीज़ से रिलेट करते हैं? यू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव सैमसंग फोन or let's say a very expensive Android phone, and if you use Instagram on that phone versus if you use it on iPhone, there is a huge difference. Why? उसकी मल्टीपल रीजंस है. यस ऑप्टिमाइजेशन है बिकॉज आईफोन के 4 मॉडल्स हैं, एंड्रॉयड के अंदर कोई 1000 मॉडल्स हैं. तो स्नैपचैट कैन नॉट गो एंड से कि मैं हर मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज करूंगा. स्नैपचैट कैन ओनली ऑप्टिमाइज विद एप्पल बिकॉज 4 ही फोन है ना, तो इट्स ईजियर टू डू. But the algorithm is where it matters. So they say that our algorithm is better, it's faster, it's more, उसके अंदर ज़्यादा pixels आते हैं, right? So features अब नहीं आते, अब processing power आ जाती है कि मेरे पास new M5 chip है and it's 40% faster than the last one, right? मतलब कैमरे से बाहर निकल सब AI पे चली गई कि हमारे तो कैमरे के बाद 45% भी वो पिक्चर आपको बना के दे सकते जो क्लास में नहीं बनाते. बिल्कुल एग्जैक्टली. अब AI पे बात चली गई. इतनी चली गई है कि मैं कल मैच देख रहा था पाकिस्तान का, उसमें सुपर एशिया का एक ऐड आया. सुपर एशिया के ऐड में लिखा था कि हमारे पास जो चिप है ना वो सुपर AI पावर्ड है. मुझे पता नहीं होगी, but it's just marketing, right? Because yes, now people say कि where is the intelligence in this? Because अगर आज 5 साल पहले रजा भाई से अगर मैं कंपेयर करूँ तो रजा भाई would beat me on experience. यार he's obviously माशाल्लाह से मुझसे बड़े हैं बट ऑब्वियसली इन नॉलेज स्पेक्ट्रम में वो मुझे बीट कर देंगे, राइट? बिकॉज he's उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है. बट आज के दिन में विद द एडवेंट ऑफ AI मेरे ख्याल से जो उनको पता है मैं चैट GPT कर लूँ, मुझे भी पता है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू आर एंड अगेन आप उसको कितना जल्दी प्रेजेंट करते हैं और कितना एक्यूरेटली प्रेजेंट करते हैं, राइट? सो दिस इज माई पॉइंट कि अब SaaS को हम एज अ फीचर नहीं देखते. आप किसी भी कंपनी के पास जाएं, वो कहें ना यार मेरे पास आप कुछ हमारे कंपेटिटर्स होते हैं वो हर चीज़ बना देते हैं, अपनी वेबसाइट को 20 पेजेस की बना देते हैं या क्लाइंट के पास 50 पेजेस का डॉक भेजते हैं. डजंट मेक सेंस बिकॉज नो वन इज गोना रीड इट. यू डोंट हैव एनी एक्शनेबल इंटेलिजेंस के फीचर्स करते क्या हैं. बट SaaS का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज राइट नाउ द डेटा लेयर. So any of you who want to move towards AI need a data layer, and especially like I said in the case of purchasing or HR, जो applications HR में सबसे successful applications कौन सी हैं? Yes, CRM की बात कर लेते हैं. Salesforce, MyHCM, SuccessFactors, one of the biggest, obviously. Workday is again one very big application.
So these companies, for them to move into AI is very easy. वो चैट जीपीटी का LLM लेंगी, उनका अपना डेटाबेस है, अपनी एप्लीकेशन बनी हुई है, they will create an AI bot and say this is my database, these are all the parameters जो कि उस एप्लीकेशन में है, and why not you ChatGPT analyze this data. So when ChatGPT comes in, उसके पास एक structured data पड़ा हुआ है, उसको पता है मैनेजर्स कौन है, उसको पता है कि एम्प्लॉइज कौन है, एम्प्लॉइज की आईडीज क्या है, उनके पेरोल क्या है, उनकी अटेंडेंस पॉलिसी क्या है, ऑल ऑफ दैट इज ऑलरेडी देयर बिकॉज सक्सेस फैक्टर इन ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर वर्किंग ऑन दैट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. सी सो उसका इंस्टेंट आउटपुट है. बट अगर आप कोई फ्रेश कंपनी बोले यार मैं पहले एआई बनाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उसके पास कोई डेटा ही नहीं होगा. सो the application needs to do, it needs to connect to a certain domain, it needs to record events. मैंने आपको पहले दिखाया था कि events होने चाहिए that capture operational reality. Again, Salesforce की example है. Salesforce is one of the biggest tools. It's not good, but it's one of the biggest. Oracle का database use करते हैं वो लोग, और अब Oracle के through AI भी use कर रहे हैं. ठीक है, but they capture all the operational events related to making a sales, and then they automate it through AI now. और AI वाला भी अब जारी बात it's more expensive right now, but before that अगर आप बोलते हैं यार मुझे सिर्फ आज AI का टूल बना दो, मुझे AI चाहिए अपनी सेल्स के प्रोसेस में, how would you go about it? Anyone? कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल परचून की दुकान की दी थी कि आज ही मुझे AI चाहिए यार, मुझे अब कोई टूल वूल नहीं चाहिए, मुझे चैट जीपीटी चाहिए. You'll have to create an application first, then you'll have to have a data. Exactly. So again, this is very important. So अब क्या होता है कि हमारे जो सप्लाई चेन के इवेंट्स हैं दैट ऑल इंक्लूड के रिसीविंग का प्रोसेस क्या है, क्वालिटी का प्रोसेस क्या है, QC क्या है, डिस्पैच किस तरह हो रही है, ड्राइवर कौन है, फ्लोर ऑपरेटर कौन था, किस टाइम पे हुई, उसकी यूजर एक्सेस लेवल क्या था, कितनी क्वांटिटी थी, सब कुछ हम ट्रैक करते हैं, जो कि प्रोबेबली देयर अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स. क्विक बुक्स एग्जाम्पल है, तो जिन कस्टमर से हम काम करते हैं वो कहते हैं यार हमारी इन्वेंट्री तो हमारे पास क्विक बुक्स पे आ जाती है. मैं कहता हूँ यार आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं, कहते हैं नहीं. कहते हैं, मैंने कहा, उसने कहा डज इट मैटर, मैंने कहा यस, बिकॉज यू डोंट नो कि आपका एक्सपायर्ड स्टॉक कितना पड़ा हुआ है या आपकी कैश फ्लो कितना फंसा हुआ है, यू डोंट नो ऑल ऑफ दैट. उसके बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किधर आ जाती है हमारे पास, इमर्जिंग मार्केट्स. सो इफ एनीवन इज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग, इमर्जिंग मार्केट्स इज द बेस्ट प्लेस टू बी. व्हाई? अगर आज मैं आई वेंट टू Silicon Valley, Amazon, few months ago. उनके headquarter में गया, there was a session. So 95 people in that room were Indians. ठीक है, मैंने कहा सही है यार. So मैं एक पाकिस्तानी था, एक और कंपनी थी पाकिस्तानी. So वहाँ पे जो level of knowledge that I felt like मैं कोई शायद KG1 में बैठा हुआ, honestly, because they have advanced so much that we don't even connect with them. Contextually हम connect ही नहीं कर पा सकते, उनकी problems बहुत different हैं. वहाँ पे मैं सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म किसी को पिच कर रहा था, उसने कहा मुझे आइकिया से भी कनेक्ट करना है, मुझे कॉस्को से भी कनेक्ट करना है, मुझे पेप्सी से भी कनेक्ट करना है. सो मेनी, उनकी डिजिटल लैंडस्केप हैज इवॉल्व्ड सो मच बिकॉज वो लीड कर रहे हैं, राइट. बट इमर्जिंग मार्केट्स में कौन लीड कर रहा है? डू यू नो एनी प्लेटफॉर्म जो गूगल की तरह है? एग्जैक्टली. सो जहाँ अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं, अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है. बिकॉज आप अगर लेट्स से 100% सब खराब है और आप 1% भी अगर ठीक करेंगे तो दैट्स स्टिल अ बिग थिंग, राइट. सो इमर्जिंग मार्केट्स में अभी सबसे ज़्यादा फायदा है वर्टिकल सैस का. बाकी आप किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें फिक्स हो चुकी होंगी, बट यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स नजर आते हैं. एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई एम से इमर्जिंग मार्केट्स, आई वुड इवन कॉल सऊदी एज एन इमर्जिंग मार्केट, बिकॉज यस सऊदी हैज अ लॉट ऑफ मनी, लगता है बहुत डेवलप्ड है, बट देयर बिजनेसेस आर नॉट डेवलप्ड एट ऑल. देयर बिजनेसेस आर वेरी रिडंडेंट, पुराने, वो भी पाकिस्तान के लिए चला रहे हैं. सो UAE इज एन एग्जांपल एज वेल. यस इट लुक्स वेरी फैंसी, बट वहाँ की जो ऑपरेशनल बिजनेसेस हैं वो अभी भी मैनुअली ही रन हो रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल. सो अगेन, जिस तरह मैंने बताया कि जो इवेंट्स कैप्चर हो जाते हैं, विजिबिलिटी मिलती है हमें डेटा के थ्रू, यार क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या परफॉर्मेंस है हमारी कंपनी की, देन AI becomes possible.
उससे पहले अगर आप, ये मेरा व्यू है, हो सकता है कोई मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर ले आगे जाके, बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग दैट AI will only become possible once people have that standardization data layer in companies. एक फायदा हमें लेकिन पाकिस्तान में है, वो क्या हो सकता है, या इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली? पाकिस्तान में एक लाइन हर वक्त यूज होती है, यंग एंड अर्बनाइजिंग यूथ। माशाल्लाह से यू गाइस आर ऑब्वियसली फ्यूचर इंशाल्लाह। सो उसमें जो फोन फर्स्ट है ना, सो यू आर बेसिकली लीप फ्रॉगिंग जो एक यूएस की जर्नी थी ना, फ्रॉम 1990 से लेके 2010 तक यूएस की एक जर्नी थी कि वो पहले इंटरनेट आया, फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड आया, फिर क्लाउड आया, फिर ईआरपीज आए, फिर क्लाउड सप्लाई, क्लाउड सॉफ्टवेयर आए, फिर एआई आई। यू गाइस आर लीप फ्रॉगिंग। हमारे पाकिस्तान में 2005 में ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया, 2010 में कॉन्सेप्ट आया, यूट्यूब आया, और उसके बाद यू आर डायरेक्टली शिफ्टिंग टू एआई, सो यू हैव नॉट इवन विटनेस दैट। सबसे बड़ा फायदा ये है। सेकेंडली फोन, सो क्लाउड एप्लीकेशंस का फायदा है, फोन पे चलती हैं राइट नाउ। आई थिंक मोर देन योर कंप्यूटर स्क्रीन टाइम, आपका फोन का स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा। दिस इज एन एडवांटेज, आई एम नॉट गोना से इट्स बैड, इट्स एन एडवांटेज एक्चुअली। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट मिजरी ऑफ पूरा डेकेड हम वो गुजारे, we can directly leapfrog and go into AI through this, a vertical SaaS. Because आपके पास अभी ये सब चीज़ें available हैं, you can just go and link ChatGPT right now with any tool that you build. आप ChatGPT से tool build करें और ChatGPT को ही बोलें कि उसमें AI लगा दो, वो लगा देगा। But आपकी जो थिंकिंग है ना, वो आनी है कि वो कौन सा ऑपरेशनल प्रोसेस है जो मुझे ऑप्टिमाइज करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, एंड यू हैव टू लिव थ्रू द प्रॉब्लम। सो हमें फायदा क्या हुआ, लाइक आई सेड, मैं नोवो में था, करीम में था, सारी एक्सपीरियंस में ऑपरेशनल पेन कि यार सिस्टम नहीं चल रहा, डेटा नहीं अवेलेबल है, मेकिंग बोर्ड रूम के अंदर बैठ के गलत डेटा पे कॉल्स ली जा रही है। दिस इज लाइक वेरी, मैं तो बहुत दफा ये फेस कर चुका हूँ। So you have to live through that pain, and that something personal to you, you can create those events कि यार मुझे ये डेटा कैप्चर करना है, because अब कैप्चर करने का तरीका आसान हो गया। So you have to think in that way. So again मैं ये बात ही कर रहा था कि अब जो आगे फ्यूचर है, do you know what horizontal AI is? Vertical से पहले मैं आने पे, do you know what horizontal AI is? So horizontal AI platforms are like ChatGPT, जो हर चीज करते हैं। वो मतलब उनको आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे, they'll do everything. तो ChatGPT, Gemini, Bard, ये आपका Meta का Llama, all of those are horizontal AIs. They can create a picture, they can create a video, they can create Excel reports. So they're like masters of everything, या jack of everything कह लें basically, masters of none. Because वो हर चीज कर लेते हैं। Vertical AI again belongs to a certain respective domain. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे देता हूँ। टेस्ला, Why is Tesla? मेरे ख्याल से मैं रजा भाई से भी डिस्कस करता हूँ। I think 5 years में Tesla will outtake every company and become, and Elon Musk will actually become the first trillionaire in this world. Why? Because it's completely vertically integrated. How is it vertically integrated? उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, so they have a lot of Tesla cars. You've probably seen one, maybe किसी ने चलाई भी होगी. So they're capturing millions or billions of micro events, like speed कितनी है गाड़ी की, ब्रेकिंग कितना बंदा कर रहा है, कब कर रहा है, सामने जब उसने ब्रेक दबाई तो कोई क्या आया था, उसने ब्रेक दबाई, ड्राइवर के इनपुट्स क्या हैं। सो कितने ज्यादा इवेंट्स हैं जो टेस्ला कैप्चर कर रहा है, वो अपने मॉडल में रन कर रहा है। ठीक है, सो इट्स अ फीडबैक लूप। वो मॉडल में रन करता है, मॉडल उसको इंप्रूव करता है, एंड देन ड्राइविंग बिकम्स बेटर, देन बेटर एंड देन बेटर। सो इट्स अ कांस्टेंट फीडबैक लूप। So it's going from input to processing to output to again then processing. So इसमें हमने ये देखना ये है कि supply chain is also identical like this. There are millions of events in supply chains. You have to capture them, process them, create a feedback loop, and then innovate on them. So this is what we see के vertical SaaS इस तरह का होगा। किसी को कोई इंडस्ट्री या कोई और vertical SaaS like Tesla, you have any examples? लगता है कि जैसे टेस्ला एक काम कर रहा है तो एआई में और कोई भी काम कर रहा होगा। एनी एग्जांपल्स? बिल्कुल। सो मेटा अपना फ्यूचर उस पर बेट कर रहा है।
गूगल क्या कर रहा है? मैप्स, बिल्कुल. सो गूगल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल बिकॉज उनके पास इतनी एप्लीकेशंस हैं. Gemini is a model, but yes, Google is such a big company कि वो मैप्स में भी हेल्प कर रहा है, वो अपने YouTube में भी हेल्प कर रहा है, वो हर अपनी एप्लीकेशन. So these are all vertically focused SaaS softwares that are being run by AI now. So you have to look at it कि vertically और कौन सी applications है. जैसे आपने, it's a very good example, but exist नहीं करता अभी तक पाकिस्तान में या emerging markets में कि cameras automatically improve करें. अभी ई चलान आया है, so yes, आधे तो बंद पड़े मेरे ख्याल से, अब चलते भी नहीं है. बट आर दे इम्प्रूविंग ऑन द प्रोसेस? आई डोंट थिंक सो. उनको एक स्टैंडर्ड चीज़ें दी हुई हैं, बट दैट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन दैट कैन बी बिल्ड. अभी बनी हुई, मैंने नहीं सुनी. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल. इवन स्टेट लेवल पे अब जिसमें चाइना का फेशियल रिकग्निशन में जो काम कर रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट. कई बेहतर टैक्सीज चल रही हैं जो कि आपको विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन टैक्सीज चल रही हैं फार्मर्स को. बिल्कुल ऐसे ही. सो वो दैट्स अगेन सेल्फ ऑटोनोमस ड्राइविंग, जो कि टेस्ला इज द किंग ऑफ इट. But yes, there is Waymo, जो Google का है. There is Lucid. There are multiple companies that are doing this. But I said कि why Tesla? Because Tesla is the king of it. Because Tesla ये actually 5 साल पहले कर चुका है, और अब AI के बाद it's just going to accelerate. So again, जो हमें नजर आता है कि अब जो future है वो vertical SaaS का है. So any application that we're going to build is going to be for a certain domain, और उस domain को power करेगी AI. And it can be any. It can be Gemini. It can be चैट जीपीटी का, कुछ भी हो सकता है. बट पहले जो फीचर्स पे हम बात करते थे कि यार मेरा सॉफ्टवेयर का यूआई बहुत अच्छा है, मेरे सॉफ्टवेयर की स्पीड बहुत अच्छी है, दैट इज टोटली बेसलेस नाउ. बिकॉज अब मेन चीज़ है कि कैन योर सॉफ्टवेयर ट्रैक द डेटा. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोई भी डेटा करने से पहले हमने क्या फॉलो किया, या इन अ वे कि हमने डोमेन स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स बनाए फॉर सप्लाई चेन, जिसमें हमें वी स्टार्टेड ऑफ विद वेयर हाउसिंग, नाउ वी आर डूइंग ट्रांसपोर्टेशन, वी आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग. इवेंट बेस्ड इंटेलिजेंस, उस इवेंट से हमने WMS में काफ़ी रिपोर्ट्स निकाली. नंबर 1, हाउ मच डेड स्टॉक एम आई कैरिंग. डेड स्टॉक इज बेसिकली आपने गुड्स को ABC कैटेगरी में हम करते हैं कि यार मेरे पास फास्ट मूविंग कौन सा है, मीडियम कौन सा है, और सबसे स्लो मूविंग कौन सा है. सो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करना कि मेरा स्लो मूविंग SKU कौन सा है, ताकि मैं उसको या तो रीऑर्डर नहीं करूँ, या मैं उसको डिस्कार्ड करूँ, या आई ट्राई टू पुश अ मार्केटिंग प्रोमो ऑन दैट ताकि वो मैं उसको निकाल सकूँ. बट दिस इज ऑटोमेटिकली बीइंग डन विदाउट एनी ह्यूमन. वो सिस्टम आपको खुद बता रहा है. अगेन ट्रांसपोर्टेशन में राउटिंग इज द बेस्ट एग्जांपल. गूगल से भी बेहतर अगर आपको ये मैं बताऊं कि मेरा 40 फीट ट्रक है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम और वेट ऑफ कार्गो आ सकता है, मुझे कितने ट्रक्स चाहिए होंगे अपना पूरी इन्वेंट्री के लिए, या एक अगर प्लानर मुझे प्लान देता है, और मुझे व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमल टाइम टू फॉर दोज ट्रक्स टू बी सेंट आउट. लोडिंग टाइम कितना होता है, अनलोडिंग टाइम कितना होता है. दीज आर ऑल थिंग्स दैट do not exist in any ERP, but yes, they exist in O360. Yes. See? बिल्कुल. एक लिमिट होती है, ऑक्सीडाइज कर जाता है वो आफ्टर लाइक 4 मंथ्स ऑक्सीडाइज. ठीक है. वो आई यूज्ड टू मेक दैट रिपोर्ट. ठीक है कि वो हमें पता लग जाता था. तो आई वांट टू आस्क कि हाउ इज इट डिफरेंट. बिल्कुल, गुड क्वेश्चन. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो अगेन जो रिपोर्ट आपकी थी, दैट वाज अ प्री सेट रिपोर्ट. उस पे एक SQL क्वेरी लगी हुई थी, और उस पे आपने सर्टेन SQs उस पे एक फिल्टर लगा हुआ था कि इतने डेज के बाद वो मुझे बता दे. दैट वाज द रिपोर्ट. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि वो रिपोर्ट के जो फिल्टर्स थे, वो अपडेट तो इंस्टेंटेनियसली भी होती होगी, बट उस पर फिल्टर का पैरामीटर एक ही था कि 40 डेज 30 डेज जो भी आपने सेट किया हुआ होगा. राइट. मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, वो फिल्टर्स हम ऑटोमेटिकली खुद ही सेट करते हैं, सिस्टम सेट करता है. वो खुद ही डिसाइड करता है कि कौन सा SKU एजिंग में जाना चाहिए 40 डेज कैटेगरी में, उसका रीऑर्डर पॉइंट्स क्या होने चाहिए, नेक्स्ट टाइम उसको कब ऑर्डर करना चाहिए. आपको मैनुअली आपको रिपोर्ट मिल रही है ना, वो रिपोर्ट के बाद जो एक्शन करना है ना आपने, वो सिस्टम खुद ही कर रहा है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. तो ये फर्क है. बट येस, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डेटा लेयर. अगर वो रिपोर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो आगे के काम भी नहीं होंगे हमारे पास. तो एग्जैक्टली. तो बट आगे के कामों को ऑटोमेट करने के लिए यू नीड इंटेलिजेंस, यू नीड एन AI to do that.
ठीक है. सो अगेन इसके बाद अगर हम जाएं तो ये सारे, अगर मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं आगे चलता हूँ. आई थिंक सबसे क्रिटिकल है फॉर एनी स्टूडेंट राइट नाउ, अगर मुझे एक लेसन गोइंग 10 years बैक अगर किसी मेरे प्रोफेसर ने दिया था, वाज फर्स्ट प्रिंसिपल्स. So I like to share that with you कि what is first principles. किसी ने first principles के बारे में सुना हुआ है? तो आप जाके सर्च किएगा. फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज बेसिकली, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिले, सामने कोई भी प्रॉब्लम है, यू डाइसेक्ट इट इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स. ठीक है. और प्रॉब्लम्स क्या है कि यार ये किसने किया, राइट? सिर्फ ये क्वेश्चंस हैं, व्हाई, वेयर, हाउ. यू हैव टू डाइसेक्ट इट एंड देन सी कि आप सबसे पहले उसमें से क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. And then you go on. And this is the philosophy that's used by Elon Musk. जब Elon Musk ने reusable rockets की बात की, तो किसी ने सोचा नहीं था. He said कि अगर एक रॉकेट ऊपर जाता तो वापस भी आ सकता है. उसने सोचा सिर्फ. And then he started dissecting that problem कि किस तरह आएगा, कौन लेके आएगा, क्यों आएगा, right? क्यों तो बड़ा क्लियर है कि it saves a lot of cost. कैसे आएगा, तो reusable boosters बनाने पड़ेंगे हमें. So first principles is really important. Whenever you're building something, whenever you're thinking about something, you have to dissect that problem and then see. अब इसी तरीके से कोई भी डेटा आपने कैप्चर करना है किसी भी क्लाउड एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी आप यू वांट टू बिल्ड समथिंग, यू हैव टू सी इससे मैं किसको हेल्प कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब सप्लाई चेन फ्लो में अगर हम आ जाते हैं, तो मैंने भी इसी तरीके से सारी चीज़ों को पीस डाउन किया था कि एक सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. एंड ये जो मैंने अभी 9 चीज़ें लिखी हुई हैं इधर, व्हिच इंक्लूड्स योर इनिशियल सप्लाई चेन. अगर सबको नजर आ रहा है, योर इनिशियल सप्लाई चेन स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट रॉ मटेरियल्स, देन मैन्युफैक्चरिंग होती है उन मटेरियल्स की, फिर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होती है, देन इट गोज टू योर वेयर हाउस, फ्रॉम योर वेयर हाउस इट कैन गो टू फिनिश गुड्स, फिर आपके ऑर्डर्स बनते हैं, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर्स, डिस्पैच होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, डिलीवरी. ये स्टैंडर्डाइज्ड एक फॉर्मूला है सप्लाई चेन का. बट अगेन हर स्टेप के अंदर देयर आर लाइक प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एज वेल, राइट? बट यू हैव टू ब्रेक डाउन सप्लाई चेन. मैंने जब ब्रेक डाउन किया, मैंने कहा यार मुझे सबसे ज्यादा इशू जो नजर आता है वो वेयर हाउसिंग में नजर आता है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली मैनुअल. रॉ मटेरियल्स तक और मैन्युफैक्चरिंग तक आपकी ERP हैंडल कर लेती है, बट व्हेन यू गो टू WMS, TMS, ये आपकी ERP नहीं हैंडल करती. बेसिक ERPs, यस, ऑरेकल का भी ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है, बट ये हैंडल नहीं करती. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, एंड दिस वाज द प्रोसेस व्हिच आई यूज्ड फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि मुझे इमीडिएट पेन कहाँ नजर आ रही है, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए और किस प्रोसेस को रीइन्वेंट करना चाहिए. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ जस्ट हम रिसीव किस तरीके से SQ को करते हैं. सो राइट नाउ आवर WMS इज बीइंग रन इन ग्लोबल कंपनीज इंक्लूडिंग नेशनल फूड्स का जो वेयर हाउस है वो हमारे WMS पे रन होता है. यूनिलीवर का वेयर हाउस हमारे WMS पे रन होता है. They have their ERPs, but WMS पे we feel that we have a competitive advantage in terms of the value that we provide. It's not just basic dispatch receiving, it's a whole lot more than that. So you have to think in that terms, you have to break it down and then see कि आप कहाँ पे immediately you can start operating. इसमें मैं आ जाऊँगा, probably it's a bit like a sad truth. Unfortunately पाकिस्तान में या normally companies जब SAP लगाती हैं या Oracle लगाती हैं, they pay millions of dollars, but there's a big misconception. Mostly FICO modules लगाती हैं. What is FICO? Finance and Accounting. So yes, अगर मैं आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन देखूँ तो फाइनेंस और HR में होगी. Why is that? Because जो स्टैंडर्ड SAP का लाइसेंस आता है या मॉड्यूल आता है वो उनका SAP MM आता है या B1 आता है, तो Oracle Fusion आता है, वो बेसिक अकाउंटिंग को कवर करता है जिसमें आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो प्रॉपर है. Your boss or your whoever owns the company knows कि क्या चल रहा है, but it doesn't show the operational reality of your company कि यार how can I make the process better? Yes, I'm incurring a loss, but how do I make it better? So that's the gap, and this is the main thing that we argue to our customers as well कि SAP is not the solution. Yes, you can go and install SAP का WMS और supply, वो भी cloud softwares है. SAP का EWMS आता है, Oracle का supply chain module आता है, but it basically increases your cost a lot, and that's not feasible in our side of the world. So, but again, what we are trying to say is कि again, हम लोग O360 में जो करते हैं, we augment
finance with supply chain data. We have direct integrations, so it doesn't change the workflows for any CFO. CFO खुश रहता है कि मुझे डेटा मिल रहा है, मेरा कोई प्रोसेस नहीं चेंज हुआ. वेयरहाउस टीम्स खुश रहती हैं कि यार आई नाउ यूजिंग अ सर्टेन टूल, मैं एक्सेल पे नहीं काम कर रहा. वेयरहाउस या सप्लाई चेन टीम जो हर वक्त केओस में होती है, उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है. सो दिस इज हाउ वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू राइट नाउ. अभी आज जिस तरह कस्टमर्स मैंने आपको बताया, ये कुछ ऑपरेशनल गैप्स है, मैं आपको बता दिया, बट आई थिंक एवरीवन विल हैव अ लॉट ऑफ देयर ओन ऑपरेशनल गैप्स इन सप्लाई चेन. अच्छा, आज के दिन हमारे पास जो सारी मैं आपको बातें कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि यार ये कोई आ गया, रज़ा भाई ने पता नहीं किसको बुला लिया है एंड ही इज जस्ट गिविंग अस दिस लेक्चर. बट ये मेथोडोलॉजी हमें सक्सेस दे चुकी है these 3 लार्ज एंटरप्राइजेस. अगर किसी ने यूटोपिया का नाम सुना है इधर, तो यूटोपिया इज वन ऑफ द टॉप 5 Amazon sellers in the world. They're a $1 billion company. पाकिस्तान में वो कम पैसे बुलाते हैं, it's not $1 billion, but उनकी सेल is more than $1 billion. Absolutely. उन मेन है ही उनका Amazon. बिल्कुल, मेन तो उनका है ही Amazon. मेन है ही Amazon. बिल्कुल, मेन चीज Amazon है उनके लिए. They're also very innovative company, but I'm just saying कि उनका मसला था, again, उनकी अपनी 200 people, they have a IT team. मेरी टीम से कोई 10 times ज़्यादा. मेरे पास 20 लोग हैं मेरी टीम में, उनके पास 200 है. अपनी IT टीम है उनके पास. But I think one thing that they were lacking was again domain specific knowledge. They were more, जैसे सर ने कहा कि वो Amazon पे ज़्यादा थे. They were more focusing on their core domain, which is Amazon. उनको मैन्युफैक्चरिंग उनको नहीं समझ आ रही थी कि हाउ डू यू कनेक्ट दैट डेटा ऑन द ग्राउंड विद अ प्लेटफॉर्म. सो आउट ऑफ ऑल द कंपटीशन, हम जब गए उनके पास, हमारे कंपटीशन में सिस्टम्स भी था, हमारे कंपटीशन में फोलियो 3 भी था. तो ओनली एज, वी आर नॉट अ बिग कंपनी, वी आर नॉट अ वेरी स्मार्ट कंपनी, हम कोई बहुत नहीं है. द ओनली एज आई फील दैट वी हैड वाज दैट वी वर डोमेन स्पेसिफिक. वी सेड वी आर अ क्लाउड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर. वी डिड नॉट से वी बिल्ड सॉफ्टवेयर. Say you see the difference in cloud applications. या पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हमने अपनी IT एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हर बंदा आपके दोस्त होंगे, no offense to anyone, but starts up a software company, starts selling resources और वो staff augmentation करना शुरू हो जाता है. और हम वेबसाइट भी बनाते हैं, हम HR टूल भी देंगे आपको, ERP भी देंगे आपको, Shopify भी करके देंगे. So mostly हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि everyone is doing everything, which is impossible, हो ही नहीं सकता. So again, so with Utopia, that was our advantage. We said domain specific standardized data flows for your supply chain. And they already had their software जो उन्होंने बनाया हुआ था. But again, उनका ये issue है कि multiple SKUs हैं, teams के पास access नहीं है, finance का access है सिर्फ. So all of these things that I said earlier. जी? I disagree. मेरा experience थोड़ा different है Utopia पे. When I joined there, उनके पास average age, मैं बाकी companies में भी जाता हूँ, उनका staff is actually younger, more energetic, they have more energy because वो एक उनके अंदर वो spirit मुझे नजर आता है as a company because they're actually making a difference. बाकी अगर आप textile companies को देखें, they are a little different, they're more standardized. So they are actually, हर कोई सोच रहा था यार Utopia क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है. मैं just मेरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट आई थिंक अभी अगर उनका ग्रोथ कर्व देखें तो वो बहुत ऊपर है बाकी कंपनी से. सो दे आर द लीडिंग राइट नाउ, जबकि फिरोज एंड ऑल ऑफ द आर्टिस्टिक इज फॉलोइंग इन Amazon. सो दे अब इन कंपनीज ने Amazon में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. एग्जैक्टली बिल्कुल. आप बेहतर जानते होंगे, यू आर द इंडस्ट्री लीडर्स हियर, तो ऑब्वियसली यू आर राइट. बट येस, आई एग्री विद यू 100% कि ऐसा ही है. उसके बाद एक कंपनी है, दिस इज एक्चुअली आवर फर्स्ट कस्टमर, टोटल एनर्जीज. टोटल का किसी ने नाम सुना है? जी, टोटल पे आप आज जाएं, कोई भी कार्टन उठाएं, वहाँ पे QR कोड होगा, वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रिंट करता है. इनका प्रोसेस मसला क्या था? सो ऑल ऑफ दैट व्हाट आई सेड, दे आर, जब तो अभी इसको गवर्नर ने ले लिया, बट व्हेन वी वेंट टू देम, दे वर रन बाय कंप्लीट टोटल ग्रुप जो फ्रेंच बेस्ड है. दे IT पार्टनर्स आर एक्सेंचर. एक्सेंचर का किसी ने नाम सुना हो? सो एक्सेंचर है उनका IT पार्टनर,
और हम गए, हमने कहा यार पता नहीं क्या होगा यहाँ पर. They were their first WMS customers. Why? Accenture ने कहा यार मैं पाकिस्तान तो आऊँगा ही नहीं. You can't like मतलब मुझे तुम पैसे देने, तुम्हारा PNL ही अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे कि मैं पाकिस्तान में आऊँ. सबसे पहला मसला. दूसरा मसला उनकी मैनेजमेंट. चल रहा है until one day where a foreigner comes to their company, एक CEO, foreigner CEO, वो कहते हैं यार ये तुम लोग किस तरह सप्लाई चेन चला रहे हो. उनकी सप्लाई चेन ये थी कि अमेजिंग वेयर हाउसेज इन पाकिस्तान, मतलब उससे अच्छे वेयर हाउसेज मैंने देखे नहीं है. बट बैच कौन बताएगा किधर पड़ा हुआ है, फोर्कलिफ्ट वाला. अच्छा तो फीफो तो मेंटेन ही नहीं होगा. इम्तियाज पे भी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ. बट अब एक कंपनी उनकी अगेन पाकिस्तान में देखा जाए इट्स $100 मिलियन कंपनी, इससे भी ज़्यादा की. बट उनके पास एक्सपायरीज इतनी हो रही है उनको पता ही नहीं है, बिकॉज फीफो ही नहीं मेंटेन हो रहा. ऑयल की एक्सपायरी लो होती है, नॉट वेरी लो बट एटलीस्ट मोर देन 1 year, एंड इट्स अ हैवी प्रोडक्ट. सो यू हैव टू मेक श्योर उसकी वेयर हाउसिंग स्पेस वॉल्यूम ज़्यादा होता है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ऑप्टिमाइज कर रहे हो. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि यार बैच होना चाहिए एक प्रोडक्ट का, लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए यानी कि बिन के अंदर, और जब भी उसकी पिकिंग हो वो फीफो प्रिंसिपल पे होनी चाहिए. फीफो का क्या मतलब है? एग्जैक्टली. सो अब वो सिस्टम करता है. कोई बंदा नहीं सोचता कि अच्छा यार मैंने ये ए बैच 1 वाला इधर रखा था, 2 वाला इधर रखा था. सिस्टम के अंदर एल्गोरिथम है. सिस्टम अब फ्लोर ऑपरेटर या वेयर हाउस मैनेजर के दिमाग से टेंशन हट गई है. जो सर आपने एग्जांपल मुझे बोली थी कि रिपोर्ट तो निकल जाएगी कि कौन सी लोकेशन पे पड़ा हुआ है. अब मेरे वेयर हाउस के अंदर 5000 लोकेशंस हैं. मैंने आपको रिपोर्ट दे दी कि 5000 लोकेशंस 10 SQ पिक करना है यहाँ से. 10 SQ के 20 डिफरेंट बैचेस हैं. हाउ मच टाइम विल यू थिंक यू कैन सॉल्व? मतलब ये रिपोर्ट आपको मिल गई, एक्सेल की रिपोर्ट मैंने डाउनलोड करके दे दी. Probably it'll take you about 1 hour 2 hours. हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लिक पे कर देता है, वो रैंक कर देता है कि सबसे नियरेस्ट आइल कौन सी है. तो ABC अगर आइल है तो बताएगा ये वाला बैच पहले आया था, ये A आइल पे पड़ा हुआ है, इस बैच के 3 और लोकेशंस पड़ी हुई हैं. सो वो रैंक कर देगा जस्ट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन. इमेजिन हाउ मच टाइम दैट सेव्स फॉर अ कंपनी जो पहले सब एक्सेल पे कर रही थी. So this is the power of again standardization and then data. उसके बाद insights. अब फिर मैं intelligence लेके आ रहा हूँ कि where the system is thinking, the human is not thinking, the system is thinking and giving you that output. मैं आपको अभी थोड़ा डेमो भी दिखाऊंगा. And then अब्दुल लतीफ जमील का किसी ने नाम सुना है? अगर आप सऊदी गए हैं, UAE गए हैं, so they basically distribute Toyota. So Toyota के products यानी कि इंजन ऑयल्स, इवन गाड़ियाँ, तो पूरे UAE में एंड सऊदी अरेबिया में दे आर द मेन डीलर्स. और टोयोटा को तकरीबन 24% ये लोग ओन भी करते हैं ग्लोबली. तो दे आर वर्किंग विद अस एग्जैक्ट सेम थिंग. इनको डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी वेयर हाउसिंग इन सऊदी अरेबिया इज बीइंग रन ऑन आवर प्लेटफॉर्म. अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि व्हेन वी स्टार्टेड बिल्डिंग आउट O360, उस वक्त तक AI नहीं आई थी. वी स्टार्टेड बैक इन 21. उस वक्त तक AI वाज नॉट अ बज़वर्ड. AI वाज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस. किसी ने Affinity का नाम सुना होगा. So Affinity was doing AI before anyone knew it back in 2018. AI became like fancy after Gen AI came in, where any individual could talk to the platform, उससे आप insights निकाल सकें. तो हमने किस तरह adjust किया इसको? So we were a data first platform. And now AI is helping us in a lot of tasks. क्या tasks हैं? बता देता हूँ. So we are now using AI in delay predictions. So अगर कोई भी shipment होती है, हम एक shipment create करते हैं, हम उसका route Google Maps की API के through we can predict कितना delay हो सकता है. अगर order में उसके statuses हैं, statuses like इन प्रोग्रेस, अनलोडिंग, सब चीज़ें हमारे पास स्टेटसेस में आ रही होती है. अगर वो नहीं हुए हुए तो हमारा सिस्टम खुद ही बफर क्रिएट करता रहता है कि आपका ETA, प्रिडिक्टिव ETA बढ़ता रहता है. स्टॉक कौन सा स्टॉक रिस्क पे है, बोथ कि अगर उसमें डैमेज हो सकती है, एक्सपायरी हो सकती है, तो स्टॉक आउट से पहले वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा कि यार यूर लो ऑन स्टॉक, आप इसको स्टॉक करो. एंड इट्स नॉट फिक्स्ड. जिस तरह आपने कहा ना कि मैंने डिवाइड कर दिया कि 30 दिन से ज़्यादा नहीं है, वो 30 डे और 15 डेज को आपकी सप्लाई चेन की वॉल्यूम से खुद ही एडजस्ट कर रहा है.
तो कभी आपकी 30 डेज हो जाएगा, कभी 15 डेज हो जाएगा, बिकॉज आपके सप्लायर लीड टाइम्स भी चेंज हो रहे हैं। अगर आज सुएज कैनाल पे शिप ब्लॉक कर हो गया है तो मेरी प्लेटफॉर्म को पहले पता चलेगा, सो वो आपको 60 दिन पहले ही बता देगा कि यार फॉरन ऑर्डर करो बिकॉज ये ब्लॉकर आ गया, यू नीड टू री ऑर्डर नाउ। सो थिंग्स लाइक दैट इन रियल टाइम। यील्ड तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा है कि अगर किसी ने लूमें लगाई हुई हैं, किसी ने मशीनरी लगाई हुई है, तो नंबर वन थिंग इज व्हाट्स योर यील्ड, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो। और एंड में आपको अपनी यील्ड में देखना होता है कि इस मशीन, मेरी $2 मिलियन की मशीन थी, 10 साल में इसने मुझे कितनी यील्ड दी। सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। एक और बड़ी सिंपल सी चीज़ है ऑटो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, सो दैट प्रॉब्ली कैन हेल्प यू इन योर POs। कि आप सिर्फ कोई, अगर आपको कस्टमर आपको कोई कोड भेजता है, वो स्कैन करके ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर ले इन्फॉर्मेशन। सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरीथिंग वन बाय वन, यू कैन जस्ट स्कैन इट और वो आपकी खुद ही डेटा फील्ड्स फिल कर दे जस्ट बाय टेकिंग अ पिक्चर और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। फिर अगेन जो एक और चीज़ हम यूज़ करें वो नेचुरल लैंग्वेज है। दिस इज़ वेरी प्लेन। एक चैटबॉट है जो AI से टॉक, यू कैन जस्ट स्पीक टू इट। सो इट्स कॉल्ड इट्स अ सप्लाई चेन को-पायलट, इट्स कॉल्ड OAI। रज़ा भाई ने पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, बट वी आर वर्किंग इनटू दिस नेचुरल क्वेरी। आप उससे पूछे व्हाट्स माय स्टॉक राइट नाउ, व्हाट वाज माय लास्ट ऑर्डर, वो आपको नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल। तो उसका एक वो है, उसका एक है कि एक्सपेंसिव ऑप्शन है कि आपके SAP अरीबा पे चले जाएं। लेस एक्सपेंसिव है कि आप एक अपना प्लेटफॉर्म बना लें। क्योंकि आई नो SAP अरीबा सोल्यूशन सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट अगेन यू हैव टू सी द ROI एज वेल, राइट। SAP अरीबा, SAP कहता है कि ठीक है मेरा बेसिक मॉड्यूल लो $2000 पर यूजर का, बट आई ऑल्सो हैव अनदर ऑफर, आई हैव $4000 पर यूजर पे SAP अरीबा। एंड देन योर पार्टनर विल से कि मुझे $1,00,000 इम्प्लीमेंटेशन के और चाहिए, राइट। तो हाँ नहीं, हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है। सो अगेन इस सब चीज़ों का क्रक्स अगर है, अगर इफ एनीवन कैन रीड दिस, अगर कोई भी इसको, क्या क्रक्स आपको मिला? AI को चलने के लिए यू नीड एग्जैक्टली exactly. So you need that operational platform for any use case, not just supply chain, for HR, for sales, for reimbursements. और क्या operational, अगर आप enterprise level पे देखें तो there's so many things you can do. So AI cannot fix bad data. Again, आप अपने भी अगर ChatGPT से बात कर रहे हो ना, उसने आपको गलती से आपने उसको कुछ गलत चीज़ बता दी है और वो उसकी बेसिस पे ही जवाब देता रहेगा, एंड विल बी लाइक ये हो क्या रहा है, बिकॉज उसके पास ठीक है उतना कॉन्टेक्स्ट है जितना आपने दिया था, बट रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट अभी भी नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंसेस, वर्कफ्लोज ऑफ डेटा। वर्कफ्लो से मुराद ये है कि एक ऑर्डर किस तरह फुलफिल होता है। जैसे उन्होंने कहा कि एक PR होती है, फिर PO होता है, फिर रिसीविंग होती है, रिसीविंग के बाद वेयरहाउस में जाता है, वेयरहाउस के बाद इशू होता है, इशू के बाद मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद फिनिश गुड्स में जाता है, फिनिश गुड्स के बाद वेयरहाउस में जाएगा, वेयरहाउस से SO क्रिएट होगा, SO के बाद डिस्पैच होगी, डिस्पैच के बाद ट्रक पे जाएगा। सो दिस इज अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट इज हैपनिंग, राइट, एंड यू हैव टू स्ट्रक्चर दिस सीक्वेंस इन दैट डेटा। तो वो डेटा एक प्लेटफॉर्म करके देता है आपको, उससे आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जैसे मैंने बताया पूरी चेन बताई मैंने आपको, और फिर आप उसको कॉज एंड इफेक्ट निकाल सकते हैं ये क्यों हुआ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर आपकी सप्लाई चेन पूरा एक फ्लो फॉलो करिए और मेरे पास टाइमलाइन सीक्वेंसेस हैं, तो जैसे ही सुएज कैनाल पे अगर कोई ब्लॉकर आता है, मेरा AI पढ़ करता है या न्यूज़ वो सिर्फ देखता है कि ब्लॉकर आया है, वो पूरी चेन को रिवर्स में जाके हर जगह देखेगा उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ है, राइट। तो वो देखेगा रॉ मटेरियल मुझे पहले प्रोक्योर करने हैं, मुझे प्रोडक्शन को अपनी स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज मेरा वेयरहाउस फुल हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस, yes, you can code all of that, you can prepare all of that, or a person can do it, जो हमारे supply chain managers ये करते हैं। But अगर AI इतनी smart हो गई है, तो अगर AI आपके पास लगी हो तो you probably don't need a big supply chain team. You just need structured data, you need a one-man team जो ये कर सकती है सारी चीज़ें। जो फायर फाइटिंग हम जिसको कहते हैं ना कि यार ऑर्गेनाइजेशन में फायर फाइटिंग हो रही है, वो फायर फाइटिंग आपकी AI बहुत कंट्रोल कर सकती है। बिकॉज जो प्रोएक्टिव डिसीजंस है ना कि मेरा ट्रक स्ट्राइक पे चला गया है, मुझे ट्रक नहीं मिल रहा, मुझे क्या करना है, मेरा वेयरहाउस फुल होता जा रहा है, ऑल ऑफ दीज इवेंट्स जो डिसीजंस हैं आपकी, वो AI आपसे बेहतर ले सकती है, दैट वी नो ऑफ राइट नाउ। ये तो हमें फॉर ग्रांटेड है, हम जितना भी अपने आप को
अगेन समझेंगे हम बहुत तेज हैं, ये हम नहीं कर सकते। एआई हमसे ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकर है गिवन द कॉन्टेक्स्ट एंड गिवन द इंफॉर्मेशन इट हैज़। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि हम एआई इंटरनली यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक्सटर्नल बता दिया क्लाइंट्स हमारे क्या कर रहे हैं, बट एक्सटर्नली वी यूज़ एआई। सो हम कोडिंग कर्सर के थ्रू करते हैं। कर्सर इज अ टूल दैट हेल्प्स विद एआई जनरेटेड कोडिंग। तो आप उसको प्रॉम्प्ट देके बोले वो कोड लिख देगा, पर उस कर्सर को पता है कि मेरा पूरा प्लेटफॉर्म के अंदर कोड क्या पड़ा हुआ है। सो इट नोज कि JS नोड के अंदर इस लैंग्वेज के अंदर ये ब्रांच के साथ कोड लिखना है। चैट जीपीटी में मैं बोलूँ ना ये कोड लिख देगा, बट इट डजंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई प्लेटफॉर्म। सो कर्सर से मुझे ये फायदा होता है। फिग्मा इज अ वेरी गुड AI tool for creating UX UIs। पहले आप drag and drop कर सकते थे, अब you can just write a prompt, वो आपको एक बहुत अच्छा UI बना देगा। तो you don't need a designer anymore। When we started, we had a team of 4 designers at Aware। Now we don't have any because हमारा जो main product बंदा है वही खुद ही बना लेता है सब कुछ। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आप उसको prompt किस तरह दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। GitHub is very powerful. So GitHub is a sorry interference. GitHub is a very good tool that records आपकी code base जहाँ पर होती है उसको store करता है, but वो आपको errors, आपकी upgrades, वो सब कुछ आपको automatically बता देता है। Sentry is a tool we use for QA and error recording। तो error क्या होता है कि मेरी application real time में deployed है 3 countries in Pakistan, UAE, Saudi Arabia and in Canada। 4 countries, sorry, Canada as well। मेरे पास एक टीम बैठी वो एरर लॉगिंग कर रही होती है, बट इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट। तो मेरे पास एक टूल लगा हुआ है जो मेरे कितने एरर्स जनरेट हुए, किस यूजर ने क्या किया था वो एरर हुआ, उसका एक्शन रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वो टिकट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है मेरे जिरा पे। सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग डन थ्रू AI नाउ। एंड देन AWS, सो आवर क्लाउड एप्लीकेशन इज बेसिकली बीइंग रन ऑन AWS। AWS के अंदर बैकएंड पे देयर इज एन एल्गोरिथम दैट्स बीइंग रन बाय AI। तो वो क्या करता है कि जैसे हमारे कंप्यूटर की रैम होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, राइट? सो AWS has millions of servers across the globe। ठीक है, अब मेरे पास ट्रैफिक आती है, अगर एक ही बंदा यूज कर रहा है तो वो उसको स्केल डाउन कर देगा, मतलब 1 GB रैम एलोकेट करेगा। जब मेरे पास 100 यूजर्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको 4 GB पे या 8 GB पे ले जाएगा। तो वो ऑटो स्केलिंग कर रहा था, which is basically वो अपनी एनर्जी भी प्रिजर्व कर रहा है। क्यों? अगर वो 8 GB ही मुझे हर वक्त देता रहेगा, मेरी कॉस्ट तो बढ़ेगी बट उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उनकी बिजली ज़्यादा यूज़ होगी। तो AI के थ्रू इट्स बीइंग ऑटो स्केल, तो कभी वो 2 GB पे चल रहा है, कभी वो 8 GB पे चल रहा है। सो अगेन AWS इज ऑल्सो यूजिंग AI नाउ। एक और एग्जाम्पल है गूगल, मतलब हम वैसे गूगल भी यूज़ करते हैं। तो गूगल का जो एल्गोरिथम है सर्च का, तो गूगल हैड AI 10 years ago। उन्होंने कंज्यूमर को नहीं दी थी, बट बैकएंड पे जो लिंक उनका लिंक 1 के नाम से जो एल्गोरिथम है विच लिंक्स एंड क्रिएट्स कि कौन सा हिट पहले आपको रिजल्ट शो करना है, वो AI पे ही चलता था। एंड इट्स बीइंग डन सिंस 10 years ago। वो AI ऑलवेज एग्जिस्टेड फॉर इट, बट अब वो और बेहतर हो गया, आपको सामने नजर आ जाती है। यू कैन स्पीक टू इट लाइक एन AI एजेंट। टाइम है हमारे पास, चलें। सो आई थिंक टू समराइज ऑल ऑफ दिस, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, सो in any application you need to have an operational data layer which like we all discussed right now कि events हमारे पास आ रहे हों, storage आ रही हो, उसकी sequencing है, पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, and then real time में वो process होके मुझे एक intelligence layer हो। तो यहाँ पे मेरी reports आ जाती हैं कि मैंने सर ने जिस तरह का I want a report that tells me my aging, I want a report that tells me my stock condition, but AI लगा देंगे तो वो और ज़्यादा insights देगा आपको कि मेरा कितनी देर में मेरा ट्रक डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। दिस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस, राइट? सो वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक। recommendations आप कर सकते हैं। सो वी आर करंटली वर्किंग ऑन समथिंग के मैं PO रेस करूँ या लेट्स से मैं सेल्स ऑर्डर जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं पॉपअप्स दूँ अपने यूज़र को कि हाउ कैन दे बेसिकली मेक बेटर डिसीजंस कि यार इस कस्टमर को लास्ट टाइम इतना गया था, अभी इतना नहीं दो, इसकी कैश लिमिट इतनी है, प्रॉब्ली इतना ज़्यादा इशू कर दो। सेम थिंग इन परचेजिंग, मैं सप्लायर्स को रैंक कर सकता हूँ। कैरियर वाइज सजेशंस मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ट्रेला से मर्स से भी काम करता हूँ, 3-4 कंपनी से काम करता हूँ।
कौन सा कैरियर ने लास्ट टाइम मुझे सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिया था, तो आई कैन हैव कैरियर स्कोर कार्ड्स, वो उसी वक्त आ जाएगा। रादर देन मैं एक रिपोर्ट पुल डाउन करूँ, तो उस रिपोर्ट को यूज़ करके व्हेन यू आर सेलेक्टिंग दैट कैरियर उसी वक्त आपको डिस्प्ले कर दूँ यार ये कैरियर परफॉर्मेंसेज है फॉर दिस रूट, तो आप इनको यूज़ कर लो। सो ऑल ऑफ दिस अगैन कैन बी डन थ्रू इंटेलिजेंस। एंड देन द फर्स्ट वन इज द एक्सपीरियंस लेयर्स। अच्छा, दिस इज रेडिकली चेंज थ्रू जेन AI। सो प्रॉबेबली अब आपको फैंसी UIs की जरूरत नहीं होगी इन द नेक्स्ट 10 years, आज फिर भी है, but in the next 10 years you will just have a window or you can just use ChatGPT which you can say कि यार what's my order status, वो आपको रिजल्ट दे देगा। So you don't probably need a complete UI। आज तो हम UI पे ऑपरेट कर रहे हैं because obviously companies के पास ये capability नहीं है या अभी तक किसी के पास नहीं है, but probably 10 years down the road you will not have fancy interfaces, you will just have one ChatGPT bot or you will have a company bot that will be doing managing your supply chain। तो supply chain के लिए वो हमारी database से connected होगा, HR के लिए HR की database से, and then so on finance के इस तरह, and वो link कर रहा होगा सब चीज़ों को। But that's 10 years down below। So experience बहुत change हो गया है through the advent of Gen AI। So these, but again you have to realize that operational data layer is very important। अगर ये चीज़ नहीं होगी, मैं कोई 4 दफ़ा ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ, but अगर ये नहीं होगी जी। सर उसका प्रिकॉशन है, लगाना चाहते हैं, they have the will, ये है कि there are people who want to like वो कहते हैं कि यार we're good with what we are doing right now, while तो वो अभी भी पेपर पे वो स्टेटिया माइंडसेट जो है बिल्कुल कि मुझे वो नहीं करना, ठीक है। सेकेंडली, ठीक है, कॉस्ट का एक जो पार्ट है, ठीक है, व्हाई कैन तब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द ओरेकल एंड सैप यहाँ पे और भी तो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उडो फॉर एग्जांपल। अभी पाकिस्तान में दे आर डूइंग मार्केटिंग एज वेल, क्योंकि अभी उससे जो सीईओ है ही इज इंडियन, तो इस रीजन में दे आर लाइक अभी पेनिट्रेट कर रहे हैं, एंड इट्स अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स है सारी चीजें। तो इन इमर्जिंग मार्केट में जैसे पाकिस्तान में वो डेटा लेयर हम किधर से लेके आएंगे? सर वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं इसको ब्रांच आउट कर देता हूँ, हमारी आवाम प्रोग्रेसिव नहीं है, दूसरा बजट नहीं है हमारे पास, तीसरा बजट होने के बाद भी विल नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक इट विल बिकम अ नेसेसिटी। वाई? अगर आप आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल देखें, एक यूटोपियन ने तो 10 साल पहले अमेजोन में सेल करना स्टार्ट किया था ना। मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल कंपनीज दैट आई नो राइट नाउ, ऑल द बिग वंस हैव अ स्पेशल अमेजोन की अलग टीम बैठी हुई है। So they have moved. So पैसा and competition always makes you be progressive because आपको सेल बढ़ानी है या एफिशिएंसी कंपनी में लेके आनी है, राइट? दूसरी बात बजट की। So I think ये बड़ा हमारे लिए बहुत डिफरेंट है, बिकॉज हम इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि जब करीम पाकिस्तान में आई थी तो करीम की टेक्नोलॉजी उबर से अच्छी नहीं थी। करीम वॉज चीपर, करीम वॉज प्रॉबेबली more localized. What do I mean by localized? You could relate to it. So this is what we are doing with O360 as well. We say, so हम ऐसे मैंने एग्जांपल दी कि यार हमारे पास WMS है, बट SAP के पास भी है। SAP का WMS $2400 पर यूजर है, मेरा पूरे वेयरहाउस की कॉस्ट $1500 पर मंथ है। सो इमेजिन द चेंज, लाइक डिफरेंस इन ROI, राइट? इसी चीज़ को हम लोग पिच करते हैं कि यार वी आर मोर लोकलाइज्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइजेशन है कि SAP में या स्टैंडर्ड WMS में एक इन्वॉइस होती है, उसकी पेमेंट होती है, डिलीवरी होती है। पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है, पाकिस्तान में इन्वॉइस डिलीवरी के बाद होती है। सर बिल्कुल। सो अगेन आप सही कह रहे होंगे। सो नेसेसिटी विल, जब सब करना शुरू होंगे, एंड आई थिंक आप ये देखें ना पाकिस्तान में जो आपकी जो मैंने कहा कि एक बड़ा सब, अगर मैं वापस इस पॉइंट पे आ जाऊं, कि मैंने स्किप कर दी थी स्लाइड, अगर इस स्लाइड पे मैं आ जाऊं तो मैंने एक पॉइंट की थी, यंग एंड अर्बनाइजिंग यूथ। एक टाइम पे पाकिस्तान की हर फाउंडर की एक स्लाइड होती थी मार्केट अपॉर्चुनिटी की, उस पर यह फिगर होता था दैट 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यंग एंड अर्बनाइजिंग यूथ। और खान साहब ने भी यही बोला था, अगर मैं नाम ले सकता हूँ इधर, कि हमारी जेनजी या हमारी यूथ हमें चेंज करेगी, ठीक है। ये दिस इज एक्चुअली मैटर्स, यू गाइज आर द फ्यूचर। आप देखें कि आपकी अडॉप्शन टू टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट।
मे बी टिकटॉक हैज क्रैक्ड इट। हम टिकटॉक को एक एज अ क्रिंज टूल देखते होंगे, बट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, टिकटॉक हैज मेड इट सो इजी कि सबसे ज्यादा अडॉप्शन उनकी सबसे इम्पावरेज, सबसे इलिटरेट एरियाज में है। वाई? बिकॉज दे मेड द प्रोडक्ट सो इजी। तो आप मुझे कह रहे हैं कि अडॉप्शन नहीं, अडॉप्शन तो है पाकिस्तान में भी। You just need to make the tool very easy. So this point is very important for emerging markets. So I believe कि US में अब innovation कम होगी because innovation ज़्यादा इस तरह होगी कि वो बहुत saturated हो गई है amongst the big 10 tech companies. आपकी OpenAI, Facebook, they can do everything now. They're so big. मतलब तकरीबन combined उनकी अगर आप stock market valuation निकालें तो that's roughly around $6 trillion. दुनिया की GDP roughly is around $70 trillion. तो मोर देन 10 like 9% या 10% तो सिर्फ 5 कंपनीज ही पूरी दुनिया को चला रही हैं। सो आई कैन नॉट कम्पीट विद दैट। बाकी जो फ्रेगमेंटेड स्पेस है वहाँ पे आई फील लाइक इमर्जिंग मार्केट्स में ही ज़्यादा वैल्यू आएगी। वाई इज़ एवरीवन लुकिंग एट पाकिस्तान? जो पाकिस्तानी आपके देखें, अभी आपकी US कंपनीज पाकिस्तान आ रही हैं, येस यू आर सेलिंग देम ऑयल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट बिटकॉइन में पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू हैव अनटैप्ड, पाकिस्तान में अभी लीगलाइज नहीं हुआ। तो अगर लीगलाइज करके उस बंदे को आप ऑफिशियल करते हैं तो एक बाइनेंस के लिए फ़ायदा है, राइट? इसी तरीके से आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यहाँ इनएफिशिएंसी ज़्यादा है। तो लाइक आई सेड कि अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं कि 1 बिलियन की उसकी टॉप लाइन है और वो अभी मैनुअल करता है, तो प्रॉब्ली उसकी 200 करोड़ की तो उसकी नुकसान भी हो सकता है, या 100 करोड़ का नुकसान भी कहीं फंसा हुआ होगा। तो मेरी अपॉर्चुनिटी तो बड़ी होगी। अगर मैं उसका 2% भी सॉल्व करता हूँ तो 5-6 करोड़ पर तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। सो दैट इज द पॉइंट कि मैं उसको बोलूँ यार 1 अरब की है लेकिन मैं तुम्हें 5 करोड़ पर बचा के भी दे सकता हूँ। जितना बड़ा नंबर है उतनी इनएफिशिएंसी है, तो मैं देयर इज ऑलवेज अ हाई ROI। तो पाकिस्तान में ये फायदा। दूसरा, जीरो लेगेसी सिस्टम। जिस तरह आपने कहा अभी तक कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई चल ही नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कि आप कोई ऐसा सिस्टम AI पावर्ड बनाए जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग गो फॉर बिल, अब HR सिस्टम बना लें या सप्लाई चेन बना लें मेरे कंपटीशन में, बिकॉज इसमें और भी बहुत ज्यादा आ गए, राइट? बट थिंक इनोवेटिव कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है। ट्रैफिक की ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, या आपकी आज की प्रॉब्लम है, आज एक सोल्यूशन बनाए, आप सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं, दे आर वेरी प्रोएक्टिव विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। आप बोल दें कि यार मैं इस बिजली के बिल पे या पानी के बिल पे 1 रुपए लूंगा, यू कैन डू दैट, राइट? तो ये डिप्लॉय भी आप कर सकते हैं इस तरह की चीज़। सिंपल। आप और क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं कि यार एज पाकिस्तान हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसे टेक, इस पे टेक पे रखिएगा, बाकी आई डोंट वांट अ पॉलिटिकल डिबेट, बट बिल्कुल। सो आपका टैक्स फॉर्म इतना मुश्किल है कि मतलब कोई भी नहीं कर सकता, लॉयर को ही पता है, वो भी गलत करता है, बस वो फाइल हो जाता है आपका किसी तरीके से। इट्स एग्जैक्टली, सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज समथिंग कि आप AI के थ्रू या वैसे ही आप इजी कर सकते हो। और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? इधर जी जी। तो उनको पहले आप फोर्स करें कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करें, फिर उस सॉफ्टवेयर को आप अपने सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर लें। बट बेस में तो कोई विजिबिलिटी के लिए, उनको अपनी विजिबिलिटी के लिए भी तो कोई टूल चाहिए ना। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल भी दी थी कि यार मैं तो इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। इफ आई गो टू USA, मैंने क्लाइंट को पिच भी किया तो उसने मुझे बताया कि मुझे IKEA से भी इंटीग्रेट करना है, मुझे कॉस्को से भी इंटीग्रेट करना है, और विदाउट इंटीग्रेशन में आपका सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर सकता। सो द इकोसिस्टम ओवर देयर इज वेरी डेवलप्ड। और इसी तरीके से होता है कि आप इकोसिस्टम को कनेक्ट कर ले तो योर SAP कैन इवन इंटीग्रेट विद Oracle एंड योर SAP कैन इवन इंटीग्रेट विद O360। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सो पूरा इकोसिस्टम ही डिजिटाइज हो जाता है ना, तो एवरी चेन इज डिजिटाइज, देयर इज नो मैनुअल लिंक इन बिटवीन। तो वो आप फोर्स कर लेंगे मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर लो, या उसी का सॉफ्टवेयर आप अपने आप से इंटीग्रेट कर लें। सो दैट्स हाईली पॉसिबल, बट यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है ये चीज़। यूनिलीवर, नेशनल फूड्स का SAP लगा हुआ है, हमने उनसे बात भी की है इंटीग्रेट करने की, बट उनका बंदा ही चेंज हो जाता है। तो बट their WMS is still being run on our their warehouse is being run on our WMS because
आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेयर हाउसेज हैं, बिकॉज विजिबिलिटी तो चाहिए ना उनको कि यार एक्सेल की रिपोर्ट भी तो निकालनी है ना कहीं से, या मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी देनी है, सो दे आर बीइंग यूज्ड थ्रू आवर्स, इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। देयर आर मल्टीपल यूज केसेस लाइक दैट। तो जिस तरह आपका क्वेश्चन था कि क्यों नहीं करते, ये तो सर आप लोगों को ही चेंज करना होगा ना। इसी तरीके से और किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आती है इन RFID की, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ऐसे पूरी आज तक नहीं होता। फिर आपने सारे सारे आर्टिकल्स क्यों स्कैन करते थे आप लोग? चेन पे आ रही है वो मैन हो गया थी, स्टिल डोंट हैव। पाकिस्तान में आधे से ज्यादा ब्रांड से 80-90% में RFID नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, बिल्कुल। सो कॉस्ट इशू RFID का, पर एक और चीज़ है, जो बारकोड, जब अपनी शॉपिंग, जब आप जाते हैं ग्रोसरी पे, जो बारकोड आप देखते हैं ना, वो आपको सिर्फ प्राइस बताता है, बिकॉज वो एक दफ़ा प्रिंट हुआ हुआ है, सेम बारकोड हर SKU पे है, सो इट्स नॉट गिविंग यू यूनिक आइडेंटिबिलिटी। अगर आप लेस का चिप्स उठाएं दो, वो दोनों सेम है, इवन द बारकोड इज द सेम। सो उसका जो आपका प्रॉब्लम है, RFID इज एक्सपेंसिव, तो अगर एक अच्छा टैग आप लें तो 70, 80, 100 रुपीज़ तक का आता है, फिर आपको उस पर स्कैनर्स चाहिए। बट मैं आपको प्रॉब्लम, वाई आर यू स्कैनिंग एवरी आर्टिकल? तो देखिए, हम इससे मतलब ये आप रिकमेंड कर दिएगा, हमें ये प्रॉब्लम आता है। वी से कि आप एक प्रोडक्शन से जब बैच लेके आते हैं, इमेजिन देयर 1000 SKUs, TMC से अगर कोई लगता है मुझे 1000 यूनिट, एवरी 1000 यूनिट एंड उसकी एक फाइल बनती है, फिर की फाइल बनेगी, वो दूसरे स्टोर जाएगी, एक और बंदा आएगा उसको वेरीफाई करेगा, तो इट्स वेरी हेक्टिक। सो आप इसको बैच वाइज कर सकते हैं। सो एक जो 1000 यूनिट है वो कंसिडर्ड एज वन बैच, rather than कि 1000 यूनिक SKUs हों, 1000 एक बैच बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास लॉट्स बन जाएंगी डिफरेंट। जब भी आप ट्रांसफर कर रहे होंगे, आप उसको फिजिकली काउंट कर सकते हैं थ्रू अ स्कैनर, तो आप स्कैनर लगा दें, वो काउंट कर लेगा। अच्छा, वो फिर सर, बिकॉज आप सिर्फ एक दफ़ा बैच स्कैन करें और आप क्वांटिटी डाल दें 1000, rather than स्कैनिंग, नहीं, ये गलत है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी हमारी है, वो हमारे पास आई, हमने उनकी कंसल्टेंसी कर रहे थे, वेरी लार्ज कंपनी, आई विल नॉट नेम राइट नाउ, एंड दे सेड कि हमें स्कैनिंग करनी है प्रोडक्शन के बाद, वेयरहाउस के अंदर जाने के वक्त, दूसरे वेयरहाउस पे जाने के वक्त। मैंने कहा यार, अगर आप सिर्फ ये देखें कि हर स्कैन होने को 3 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड लगते हैं, बहुत फास्ट हैं आप, तो 2000 सेकेंड्स यू ऐड बाय जस्ट दिस स्टेप एक जगह पे, और वो 10 जगह हैंड्स चेंज करेगा, यानी कि 10,000 सेकेंड्स। लेबर कॉस्ट अलग है, उसके बाद आप लगाना चाहो, आपने बहुत फैंसी सॉफ्टवेयर भी लगा दिया है, तो सॉफ्टवेयर की क्लाउड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कंप्यूट कर रहा होगा। सो समटाइम्स एक और चीज़ है कि वी डोंट हैव टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स एज वेल। तो हम इतनी बार डेटा की कर रहे हैं कि हर जगह डेटा डालना भी इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू मेक श्योर द ROI इज देयर, कोई उसका, तो हम रिकमेंड करते हैं यू स्कैन इन बैचेस रादर देन स्कैनिंग ईच आर्टिकल। यू स्कैन वन SKU जो आपको बैच बता देता है कि यार ये प्रोडक्शन का बैच ये था और इसकी 1000 क्वांटिटी है। 1000 आप उसको कार्टन वाइज ट्रैक कर सकते हो, पैलेट वाइज कर सकते हो। सो इट्स ईजियर टू काउंट 10 pellets versus 10,000 cartons versus let's say 10,000 pairs, right? 10,000 pairs काउंट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1000 cartons काउंट करने में कम टाइम लगेगा, और 10 pellet काउंट करने में। आप हमसे कांटेक्ट किएगा, मे बी वी कैन गिव यू अ सोल्यूशन लेटर ऑन फॉर दैट, बट यस, ये हो सकता है। सो अगेन, ये हम वापस डेटा लेयर्स पे आ गए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप अपने प्रोसेस को ट्रैक कितना कर सकें, एंड देन हाउ यू कैन एग्जीक्यूट इट। एंड अगेन, एक और लर्निंग ये है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये वाला हमें अक्सर आता है कि ओवर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कि आप ऐप इस तरह बना दें कि आप, वो आपकी सांस भी ट्रैक कर रही है। मतलब इमेजिन आप करीम खोलें, वो आपसे पूछे आपका मूड भी कैसा है, और वो आपसे पूछे आपकी अभी ऑक्सीजन भी कितना आ रहा है आपको, और आपकी हार्ट बीट भी कितनी है, राइट? इट्स नॉट रेलिवेंट। वो करने को कर सकते हैं, यू कैन पुट डेटा इनटू इट। आप बोले यार सर आपने तो कहा था डेटा चाहिए हमें हर चीज़, हमें तो देखना था कि पैसेंजर का डेटा, उसकी वाइटल्स कैसे हैं। तब यू कैन मेक अ वेरी weird, but you have to make sure data is relevant to your outcome. So
ये भी बहुत ज़रूरी है. So there's all both sides of it. You can't overcomplicate things. इसकी एग्जांपल ये है कि आप दुबई जाएं, हर जगह आपको गेट्स, ऑटोमेटिक गेट्स, ई गेट्स लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी एवरीवेयर. What do you think is the error? Do you think they're making money? I don't think they're making money. You go to US, completely different, सब कुछ मैनुअल है. आप US इमिग्रेशन करें वर्सेस आप दुबई इमिग्रेशन करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी तो हमें लगता है ना टेक्नोलॉजी वहाँ पे SAP भी वहीं का है, जर्मन कार्स टेक्नोलॉजी जर्मनी से आई है. आप उनकी इमिग्रेशन कर लें, वहाँ आप किसी भी काउंटर पे चले जाएं, खाना ले लें, सिंपल है यार. आप मतलब जैसे आप इंसान से बात करते हो. वर्सेस दुबई और UAE और इन द एंटायर मिडल ईस्ट ओवर कॉम्प्लिकेटेड विद डिफरेंट थिंग्स बिकॉज मतलब उन्होंने अपना इंप्रेशन किया. तो मतलब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स आ जाता है. जो भी आप काम कर रहे हैं, वापस अगर मैं कनेक्ट करूं कि उस क्यों करना है हमने, लेकिन आई टेक इट बैक. थिंक आप लोग थक गए होंगे कि बस हम खत्म ही कर रहे हैं. तो आई थिंक वो वाली स्लाइड कहाँ गई हमारी. तो आई थिंक अगेन डेटा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स के यार, व्हाई आर यू डूइंग दिस, राइट? उसका आउटकम क्या है. So I think हम बस end पे ही हैं. So again, just ending on this, कि right now SaaS is not just a software, it is a data layer, and you have to start thinking कि अब जितनी भी cloud applications बनेंगी, वो not as a software बनेंगी, वो as a data layer बनेंगी, which any interface like a Gen AI interface can use. So ERPs आपको history provide कर देंगी, हमारा software आपको reality दे देगा. AI depends on clean data, and again, think emerging markets. What problems can we solve here which can make it big? And there are a lot of problems right now. So thank you so much. I'm Adil, and I hope it's समझ आई. So I hope it was insightful and आप लोग को जी बिल्कुल. जैसे इनका क्वेश्चन था ना कि PO का फॉर्म है तो उस पर वैलिडेशंस लगी हुई हैं. तो सबसे बड़ा यूज़ केस होता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे हो ना और आपका एयर एंड आ रहा है तो आप पहले से SO काट देते हो अगले महीने के भी, ताकि अपना टारगेट आप अचीव कर सको. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. बट हमारे सॉफ्टवेयर में एक वैलिडेशन लगी हुई है क्रिएटेड एट की कि ये ऑर्डर क्रिएट किस टाइम पे हुआ है. वो टाइम हैज़ टू बी इन रियल टाइम. वो आपको करने ही नहीं देगा. जब आप उसकी रिपोर्ट पुल करोगे तो आपको क्रिएटेड एट की रिपोर्ट देगा और डिलीवरी की रिपोर्ट देगा. You can't. You can calculate कि यार इस बंदे ने, मेरी टीम मेंबर ने, why did he create the order on the 31st but deliver it on the 10th? Why is there a 10-day? So you, क्योंकि डिलीवरी तो बाद में होगी ना जब कस्टमर को चाहिए. तो नॉर्मली सप्लाई चेन्स में या हमारी FMCGs करती हैं, वो 31st को सारी सेल काट देती है अगले महीने की. वो अपने कस्टमर यार दे दो ऑर्डर, ऐसा नहीं आज नहीं है 10 दिन में, वो काट देती हैं ऑर्डर. बाद में क्या होता है कि जो अगली टीम आती है वो क्रेडिट नोट्स. एग्जैक्टली. So when you use our platform, you're giving you 3 dates. One is the created ad. When was this order created? Who was the user who created this order? When was it delivered? तो ये 3 डेट्स पे आप एनालिसिस कर सकते हो 1000 ऑर्डर्स पे कि कितने ऑर्डर्स कब क्रिएट हुए, कब डिलीवर हुए. सो उससे मुझे मिला 20% ऑफ द ऑर्डर्स वर डिलेड बाय 10 days, 30% वर डिलेड बाय 40 days. एग्जैक्ट. सो ऑल ऑफ दीज डेटा चेन्स आपको सॉफ्टवेयर से मिल रही होती हैं. उससे आप लॉक कर ले. तो द डिसीजन प्रॉब्ली वुड बी द आपकी जो मैनेजर है या आपकी मैनेजमेंट कहेगी यार हम ये सॉफ्टवेयर इसलिए लगा रहे हैं कि मेरी टीम ये नहीं कर पाए. ये भी हो सकता है. या मुझे एटलीस्ट एनालिसिस मिल जाए कि मेरी टीम्स किस तरह काम कर रही हैं. तो ऑन एवरेज मेरी परफॉर्मेंस क्या है, OTIF क्या है मेरा. सो OTIF इज ऑन टाइम इन फुल. सो ये क्या है. सो ऑल ऑफ दैट डेमो करना है या आई थिंक एंड कर लेते हैं. ठीक है, चलें. थैंक यू सो मच. अगर कोई और क्वेश्चन है आप लोग के.
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।